Good morning, student. Okay, in previous class we discussed about the parameters of motion, right? We talked about the distance and displacement, we talked about velocity and speed, and we talked about the acceleration of the body, right? Now in today's class, what we are going to discuss, that is the motion in a straight line, motion in one dimension, okay? So whenever the motion is restricted to one dimension, uh, it is convenient to choose x-axis as a one dimension. Okay, so consider that this x-axis along with the motion is going to take place. Okay, and the origin is chosen in such a way that at time t equal to 0, okay, motion starts. So at time t equal to 0, motion starts from the origin O, and whose coordinates again assumed to be x equal to 0. This is the x-axis. Okay, so when the motion is taking place along this direction, we will assume that the motion is a uniform accelerated motion. It means during the motion, the acceleration of the particle remains constant. We will assume that acceleration A equal to constant. That is not going to change. Okay, that you have to remember. Then suppose at time t equal to 0, the position of the particle is at A. At time t, the position of particle will be at x. So this will be the displacement. This is the position of particle at time, I can call it x here. Okay, so this is nothing but a displacement of particle along x-axis. Suppose u is the initial velocity of the particle, okay, at time t equal to 0, and v is the velocity of the particle at time t. Okay, so these are the parameters of equation we have derived. Now we are going to derive the kinematical equations of motion, that is a relation between these all parameters. Okay, so there are different methods to derive the kinematical equations. there बहुत सारी मेथड्स है, 4 मेथड है. तो सबसे पहली मेथड है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. ओके, तो डेफिनेशन एक मेथड होगी. सेकंड मेथड इज द कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड से भी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं. थर्ड मेथड इज द ग्राफिकल मेथड, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है. ग्राफ में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं. एंड फोर्थ वन इज अ वेक्टर. तो वेक्टर तो हमने पढ़ लिया है. ओके, वेक्टर से भी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन यूज करने वाले हैं. बाय यूजिंग द डेफिनेशन वी विल डिराइव द काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, सो तुम्हें एक याद रखना पड़ेगा टू डिराइव, बिफोर टू डिराइव द काइनेमेटिकल इक्वेशंस, आई एम अज्यूमिंग दैट motion along this direction, motion along positive x direction, the acceleration is positive, okay, and velocity is also positive and displacement is also positive. अब अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाता हूँ तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव along नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, velocity is also negative and displacement will also be negative, because these are the vector quantity. Acceleration, displacement, velocity are the vector quantity. पर डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, उसका साइन भी चेंज हो जाएगा. तो दैट यू हैव टू रिमेंबर. सपोज एक्सेलरेशन, अगर मैं केस कंसिडर करता हूँ, सपोज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव. पर आ रहा है, वेलोसिटी इज ऑल्सो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी. अगर एक्सेलरेशन निगेटिव होता है एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो निगेटिव, बोथ आर अलॉन्ग द निगेटिव डायरेक्शन, उस केस में भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. बराबर है, समझ में आ रहा है. एक्सेलरेशन भी अगर नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी. इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इफ आर इन सेम डायरेक्शन, then I can say that velocity will increase. So this is the case of accelerated motion. बराबर है. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है एंड वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होगी. एंड एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी अगर नेगेटिव होती है तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होगी. इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव मतलब अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, सो दिस इज नोन एज डिसरलेशन. and this is known as acceleration.
ओके, डिसेलेरेशन इज नथिंग बट द नेगेटिव एक्सेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। अगर एक्स डायरेक्शन में अगर सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है, बराबर है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डी एक्सेलेरेशन हो जाएगा। गॉट इट? अगर इफ द बॉडी इज मूविंग along east with 2 meter per second with 2 meter per second squares, right? तो ये एक्सेलेरेशन हो गया along east। अगर मैं वेस्ट डायरेक्शन में कंसिडर करता हूँ तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डी एक्सेलेरेशन हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द वे यू हैव टू रिमेंबर कि एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली है, ठीक है? सो नाउ विल डिराइव द मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, विल डिराइव द इक्वेशन। तो अगर मैं एक इक्वेशन डेफिनेशन ले लेता हूँ, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, आई कैन टेक एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। यू कैन रिमेंबर दिस वन, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, बराबर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन मतलब एक्सेलेरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलेरेशन। तो आई एम डिफाइनिंग इट एज ए इज द एक्सेलेरेशन, ओके? एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। If particle start from origin whose coordinates are x equal to 0 at time t equal to 0, initial velocity is u and it is moving under the action of constant acceleration, okay? So velocity goes on increasing at time t equal to t, velocity becomes v। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ओके? t minus 0, this becomes v minus u by t। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, v minus u is equal to at and this implies final velocity is equal to u plus at। This is most important, this is the first kinematical equation। इसको equation 1 दे देते, right? This is the first kinematical equations of motion, or simply you can say that equation of motion, okay? तो ये होगी by definition of acceleration। अगर मैं velocity की definition ले लेता हूँ, velocity, okay? Again I can write down velocity, average velocity definition। average velocity क्या होता है, delta s by delta t, okay? so इसका मतलब क्या होगा, delta s is equal to एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, बराबर? एवरेज कैसे लेते हैं, तो आई कैन टेक एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाय 2 एंड डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू t माइनस 0। आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन t and delta s also, simply you can say that delta s will be s minus 0 because final displacement, sorry, s की जगह x लेना पड़ेगा because s is x here, तो x minus 0, correct, x minus 0 will be equal to v plus u by 2 into t। इसका मतलब क्या हुआ कि x will be equal to v plus u by 2 into t, ओके? इसको मैं बाद में नाम दूंगा, ठीक है? लेकिन आई गॉट दिस वन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन इम्प्लाइज, आई कैन राइट डाउन x विल बी इक्वल टू, इक्वेशन 1 से मैं v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। सो ये क्या आ जाएगा, u प्लस at प्लस u बाय 2 इंटू टी, बराबर है? मैंने क्या कर दिया, ये u प्लस एटी है, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2u बाई 2 2u इंटू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, व्हाट इट? सो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज x। दिस इज सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसका नाम दे देंगे 2, बराबर है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ओके? तो हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया। ये जो इक्वेशन मिल गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन v एंड टी।
फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट, देखो इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, एक बार मोशन स्टार्ट होगी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो व्हाट विल चेंज, फाइनल वेलोसिटी चेंज होती जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, सॉरी, राइट. सो दिस इज द relation between velocity and time. So whenever the velocity is given and you have to find out time, you can use this equation. Whenever the time is given and if you want to find out velocity, you can use this equation. Okay. Now this is the equation between displacement and time, because u is again constant, e is constant and half is constant, right. So this gives me the relation between displacement and time. If the time is given and they ask you to find out डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, बराबर है. नाउ विल डिराइव थर्ड इक्वेशन. तो एक फर्स्ट इक्वेशन को हम ले लेते हैं, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 हमें हमारे पास में, इसको मैं स्क्वायर कर लेता, इक्वेशन स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1, क्या मिलेगा मुझे, v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस ए टी होल स्क्वायर. इसको मैं सॉल्व कर लेता, ये जाएगा, यू कैन अप्लाई द ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ये अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू ए टी प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर. यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ, यू स्क्वायर तो है, यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, तो आई कैन टेक कॉमन, क्या ले सकते हैं कॉमन, ए कॉमन ले सकते हैं, बराबर है. और अगर मैंने 2 को भी कॉमन ले लिया तो 2a कॉमन ले लेता हूँ, 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा ut, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 2 लेना पड़ेगा तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए टी स्क्वायर. गॉट इट. So this becomes u square plus 2a. What is this one? This is second equation, x. Correct? So v square equal to u square plus twice ax. This is third kinematical equation. बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड दिस गिव्स मी, जैसे u तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो दिस गिव्स मी द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. बराबर है. x क्या बताता है? x इज ऑलवेज टेल्स मी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t. इट मीन्स दैट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस डायरेक्शन. ओके, याद रखना ये डिस्टेंस नहीं है. अगर पार्टिकल ने फिर से इधर आना स्टार्ट कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, बराबर है, डिस्टेंस भी चेंज होगा, करेक्ट. लेकिन कभी भी x जो बताएगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. यू हैव टू रिमेंबर दिस. डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते या ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते. डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको, करेक्ट है, ठीक है. सो दिस गिव्स मी द रिलेशन बिटवीन, क्या हो सकता है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. और ये जो मैंने इक्वेशन इसको नाम नहीं दिया था तो इसको मैं एक फोर्थ इक्वेशन नाम दे देता हूँ, ठीक है. फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं. तो इस तरह से हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव किए. नाउ ये पूरे चैप्टर में या मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ो या 2 डायमेंशन पढ़ो या 3 डायमेंशन पढ़ो, ये अगर 3-4 काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको याद है तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा. रिमेंबर दिस वन. मतलब होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस काइनेमेटिकल इक्वेशंस. इन इक्वेशन को किस तरह से हैंडल करना है वो मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपको कोई पैरामीटर दिया जाता है, एक्सेलरेशन इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एंड they ask you to find out time if velocity, final velocity is given. तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो. मतलब v और t के बीच में अगर रिलेशन आपको दिख रहा है तो यू कैन यूज दिस फर्स्ट इक्वेशन. अगर आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है, स्टिल इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, बट एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, तो उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टाइम दिया हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो. या इनमें से 4 पैरामीटर है, बराबर है, 4 में से 3 पता होने चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. तो कभी भी याद रखना कोई भी 3 दिया है तो 4th तुम निकाल सकते हो, बराबर है. तो ये इक्वेशन भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए मैंने इसको 4th इक्वेशन नाम दे दिया. नाउ दिस इक्वेशन, यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ऐसा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, टाइम इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है. तो ये इक्वेशन यूज करनी है, बराबर है. तो दिस इक्वेशन गिव्स मी द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. दिस इक्वेशन गिव्स मी द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, गॉट इट. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन. इसको अगर मैं एक बॉक्स में बना लूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है.
तो यहाँ पे मैं पूरे सारे इक्वेशंस को लिख सकता हूँ, एक बॉक्स में लिख लेता हूँ. So first kinematical equations of motion. Equations of motion. चलो बताइए क्या होगा. ये हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी. दिस इज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. सेकेंड x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. थर्ड हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as(x). एंड फोर्थ वन हो जाएगी x इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 इंटू टी. These are the fourth equation, 1, 2, 3 and 4. These are very important kinematical equations to study यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन कहता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई, तो एक्सेलरेशन जीरो होगी तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन. In case of uniform motion, acceleration becomes zero. If acceleration becomes zero, this kinematical equation resulted v equal to u plus at. So zero हो गया, v equal to u. इसका मतलब क्या हुआ कि in uniform motion velocity of the particle is constant everywhere. Okay? यहाँ पे origin पे जितनी velocity होगी उतनी ही t टाइम के बाद में velocity होगी. तो velocity is not changing with time. This is first equation in uniform motion. Second, x इक्वल टू यू टी हो जाएगा. ये सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन बराबर है, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर से जीरो हो गया. तो सिंपल हमें डेफिनेशन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बराबर है, तो सिंपल रिलेशन मिल गई. थर्ड रिलेशन यूज कर लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर. इसका मतलब क्या हो गया? यही हो गया, वी इक्वल टू यू. ये थर्ड इक्वेशन हमें मिल गई. ओके, फोर्थ इक्वेशन को अगर तुम अप्लाई करते हो तो एक्स इक्वल टू u plus v, u and v both are same. तो क्या हो जाएगा? v plus u 2u डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा u इंटू टी. बराबर है, तो u प्लस यू बाय 2 इंटू टी दैट इज इक्वल टू यू टी. सेकेंड इक्वेशन मिल गई. बराबर है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो दीज आर द काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट यू कैन यूज. यूनिफॉर्म मोशन अगर है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन. ओके, गॉट इट. सो रिमेंबर दीज आर वेरी, मतलब ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इससे पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा. अगर इनको यूज करना आ गया, इसका एप्लीकेशन आ गया आपको, तो कोई भी क्वेश्चन ले लो काइनेमेटिक्स पे अगर आता है तो you are easily solve this question. You can easily solve these questions. एनी क्वेश्चन को कितना भी डिफिकल्ट रहो, एडवांस लेवल का है, मेंस लेवल का है, कोई भी लेवल का है, अगर इन इक्वेशन को यूज करना आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके,